تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ میرا نام محمد عارش رضوی ہے. میں برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں اور ملک جمعہ والی میں رہتا ہوں. اور پیارے بھائی آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے اور کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ میرا نام محمد اویس رضا ہے اور برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں. موضع گلڑیا میں رہتا ہوں. کیا پیارے بھائی میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ جی کیجیے، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. آپ یہ بتائیے قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت کس رخ بیٹھنا چاہیے؟ قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت قبلہ رخ ہونا چاہیے کہ یہ مستحب ہے. آپ یہ بتائیے تکیہ یا ٹیک لگا کر قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ تکیہ ٹیک لگا کر قرآن شریف پڑھنا نہیں چاہیے بلکہ سیدھا بیٹھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے. آپ یہ بتائیے کیا لیٹ کر قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، لیٹ کر بھی قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں جبکہ پاؤں سمٹے ہوئے ہوں. آپ یہ بتائیے قرآن شریف کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ قرآن شریف کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تحفظ یعنی اعوذ باللہ شریف اور تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے. آپ یہ بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جہاں قرآن شریف پڑھنا ناجائز ہے؟ نجاست کی جگہ غسل خانہ مثلا بیت الخلاء میں قرآن شریف پڑھنا منع ہے. آپ یہ بتائیے قرآن شریف کی طرف پیٹ یا پاؤں کرنا کیسا ہے؟ قرآن شریف کی طرف پیٹ یا پاؤں کرنا ادب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ بتائیے قرآن شریف کی تلاوت کے دوران جماغی آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن شریف کی تلاوت کے دوران اگر جماغی آ جائے تو تلاوت موقوف یعنی بند کر دے کیونکہ جماغی شیطانی اثر ہے. آپ یہ بتائیے قرآن شریف کی تلاوت کے دوران پیر صاحب، عالم دین یا استاد صاحب یا والدین میں سے کوئی آ جائے تو کیا ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، تلاوت موقوف کر کے ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ یہ بتائیے بعض لوگ کہتے ہیں اگر قرآن شریف کھلا ہوا ہو تو اسے شیطان پڑھتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بات غلط ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں. آپ یہ بتائیے قرآن شریف کو جزدان یا غلاف میں رکھنے کا کیا حکم ہے؟ قرآن شریف کو جزدان یا غلاف میں رکھنا جائز ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور مبارک سے مسلمانوں کا اس پر عمل ہے. آپ یہ بتائیے قرآن شریف کو بلند آواز سے پڑھنا کیسا ہے؟ قرآن شریف کو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے کہ جہاں تک آواز پہنچے گی وہ اشیاء پڑھنے والے کے ایمان کی بروز قیامت گواہ ہوگی. البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کسی نمازی بیمار یا سونے والے کو تکلیف نہ پہنچے. آپ یہ بتائیے قرآن شریف کی تلاوت کرتے قرآن شریف کی تلاوت سننے کے بجائے باتیں کرنا یا ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ قرآن شریف کی تلاوت خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے، اس دوران گفتگو کرنا گناہ ہے. آپ یہ بتائیے بہت سے اسلامی بھائیوں کا قرآن خوانی وغیرہ میں بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ اجتماعی طور پر بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا منع ہے. ایسے موقع پر سب کو آہستہ آواز میں قرآن شریف پڑھنا چاہیے. آپ یہ بتائیے مدرسے میں طلبہ جو بلند آواز سے قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ مدرسے میں طلبہ کا بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا جائز ہے. ماشاءاللہ عرش بھائی آپ نے میرے سوالوں کے بہت اچھے جواب دیے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. آمین. چوبیس بھائی میں بھی آپ سے کچھ دینی سوال کر سکتا ہوں؟ کیجئے عرش بھائی، انشاءاللہ میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. تو آپ یہ بتائیے زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ مال کے ایک مخصوص حصے کا جو شرع نے مقرر کیا ہے اللہ کے لیے کسی مسلمان فقیر کو مالک بنا دینا بشرطے کہ وہ فقیر ہاشمی نہ ہو زکوٰۃ کہلاتا ہے. چوبیس بھائی آپ یہ بتائیں زکوٰۃ کس سن میں فرض ہوئی؟ زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی. آپ یہ بتائیں زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ چند شرطوں کے ساتھ مالدار مسلمان پر فرض ہے. آپ یہ بتائیں وہ چند شرطیں کیا ہیں؟ وہ چند شرطیں یہ ہیں: بالغ ہونا، عاقل ہونا، آزاد ہونا، نصاب کا مالک ہونا، نصاب کا قرض سے فارغ ہونا، نصاب کا حاجت اصلیہ سے فاضل ہونا، مال کا نامی ہونا اور مال پر سال گزرنا. چوبیس بھائی آپ یہ بتائیں صاحب نصاب کون ہے؟ جو آدمی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر روپیہ پیسہ یا سامان تجارت کا مالک ہو وہ صاحب نصاب ہے. آپ یہ بتائیں انبیاء کرام پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ انبیاء اکرام پر زکوٰۃ بالاجماع فرض نہیں. انبیاء کرام کے مال پر زکوٰۃ کیوں فرض نہیں؟ انبیاء اکرام کے پاس جو کچھ ہوتا گے وہ مال امانت ہے اور مال امانت پر زکوٰۃ فرض نہیں. عبیس بھائی آپ یہ بتائیں
ज़कात के फ़वाइद और फ़ज़ाइल क्या हैं? माशाल्लाह अर्श भाई, आपने वक्त की नब्ज देखकर बहुत उम्दा सवाल किया गया। अक्सर लोग ज़कात नहीं निकालते, जिसकी वजह से उनका माल पाक और साफ नहीं होता और नमाज जैसी इबादत भी कबूल नहीं होती। प्यारे भाई, ज़कात के बहुत से फ़वाइद और फ़ज़ाइल हैं, उनमें से मैं कुछ बयान करने की कोशिश करता हूँ। ज़कात देना तकमीले ईमान का जरिया है। ज़कात देने वाले पर अल्लाह की रहमत की झमाझम बरसात होती है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह अहराफ में इरशाद फरमाया, व रहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युअतून ज़कात। ज़कात देने से तकवा हासिल होता है। ज़कात देने वाला कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल होता है। ज़कात अदा करना अल्लाह ताला के घरों यानी मसाजिद को आबाद करने वाले की सिफात में से है। ज़कात अदा करने से गरीब इस्लामी भाइयों की जरूरत पूरी हो जाती है। ज़कात देने से माल पाको साफ हो जाता है। ज़कात देने से लालच और बुख्ल जैसी बुरी सिफात से अगर दिल में हो तो छुटकारा पाने में मदद मिलती है और सखावत और बख्शिश का महबूब वस्फ मिल जाता है। ज़कात देने वाले का माल कम नहीं होता बल्कि दुनिया व आखिरत में बढ़ता है। ज़कात देने वाला शर से महफूज हो जाता है। ज़कात देना हिफाजत माल का सबब है। हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खां अली की रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, ज़कात देने वाले की ज़कात कम नहीं होती, हर साल बढ़ती रहती है। ये तजुर्बा है। उवैस भाई, आपने मेरे सवालों के बहुत अच्छी तरह जवाब दिए। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। इस्लाम जिंदाबाद। बरकत इस्लाम मदरसा मक़सूदिया फरीदाबाद। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। प्यारे भाई, आपका नाम क्या है और आप कहाँ तालीम हासिल करते हैं? आपका मौज़ा क्या है? मेरा नाम गुलाम जिलानी है और मैं बरकत इस्लाम मदरसा मक़सूदिया में तालीम हासिल करता हूँ और मेरा मौज़ा शाहपुर है। प्यारे भाई, आपका नाम क्या है और आप कहाँ तालीम हासिल करते हैं और आपका मौज़ा क्या है? मेरा नाम मोहम्मद यान है। मैं बरकत इस्लाम मदरसा मक़सूदिया में तालीम हासिल करता हूँ। मेरा मौज़ा झादे वाली मिलक है। प्यारे भाई, आपसे कुछ दीनी सवालात करने हैं। जी इंशाअल्लाह करिए, मैं आपके सवालातों के जवाबात देने की कोशिश करूंगा। आप ये बताइए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने कुरान पाक में नमाज का कितनी बार हुक्म फरमाया? भाई, आपको पता नहीं है तो मुसलमानों का बवक्त मुलाकात सलाम करके दोनों हाथों से मुसाफहा करना यानी दोनों हाथ मिलाना सुन्नत है। रुखसत होते वक्त सलामी कीजिए, हो सके तो हाथ भी मिला सकते हैं। जी भाई, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले जब आपस में मिलते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व पाक पढ़ते हैं तो इन दोनों के जुदा होने से पहले पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हाथ मिलाते वक्त दुरूद शरीफ पढ़कर हो सके तो ये दुआ भी पढ़ लीजिए, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। तो मुसलमान हाथ मिलाने के दौरान जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा जल्ला कबूल होगी और हाथ जोड़ने से पहले पहले दोनों की मग़फ़िरत भी हो जाएगी। आपस में हाथ मिलाने से दुश्मनी दूर होती है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मुसलमान अपने भाई से मुसाफहा करे और किसी दूसरे के दिल में अदावत ना हो तो हाथ जुदा होने से पहले पहले अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला इन दोनों के गुज़श्ता गुनाहों को बख्श देगा। और जो कोई मुसलमान भाई अपने भाई की तरफ मोहब्बत भरी नजर से देखे, उसके दिल या सीने में अदावत ना हो तो निगाह लौटने से पहले पहले दोनों के पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। जितनी बार मुलाकात हो हर बार हाथ मिलाना मुस्तहब है। दोनों तरफ से एक एक हाथ मिलाना सुन्नत नहीं, मुसाफहा दोनों हाथों से करना सुन्नत है। बाज़ लोग सिर्फ उंगलियां ही आपस में टकरा देते हैं, ये भी सुन्नत नहीं। हाथ मिलाने के बाद हाथ चूम लेना मकरूह है। मुसाफहा करते यानी हाथ मिलाते वक्त सुन्नत यह है कि हाथ में कोई चीज मतलब रुमाल वगैरह हाइल ना हो, दोनों हथेलियां खाली हो और हथेली से हथेली मिलानी चाहिए। आप ये बताइए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने कुरान पाक में नमाज का कितनी बार हुक्म फरमाया? अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला ने कुरान पाक में नमाज का 700 से ज़ायद मर्तबा हुक्म फरमाया है। आप ये बताइए, जो शख्स नमाज की फर्जियत का इनकार करे उसके बारे में क्या हुक्म है? जो शख्स नमाज की फर्जियत का इनकार करे वो काफिर है। आप ये बताइए, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को अपनी आंखों की ठंडक
फरमाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आगोई ठंडक फरमाया है। अब नमाज पढ़ने के चंद फजाइल बताएं। नमाज पढ़ने के चंद फजाइल ये हैं, नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन की महराज है, नमाज अल्लाह ताला की खुशनुदी का सबब है, नमाज से रहमत नाजिल होती है, नमाज से गुनाह मुआफ होते हैं, नमाज बीमारियों से बचाती है, नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है, नमाज कब्र और जहन्नम के अज़ाब से बचाती है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज पुलसिरात के लिए आसानी है, नमाज मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, नमाजी का भरोसे क़ियामत सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। नमाजी को क़ियामत के दिन दाएं हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा। नमाजी के लिए सबसे बड़ी नेमत यह है कि बरोज़ क़ियामत उसे अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला का दीदार नसीब होगा। आप ये बताइए नमाज न पढ़ने के क्या नुकसानात हैं? नमाज न पढ़ने के नुकसानात ये हैं, बेनमाजी से अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला नाराज होता है, बेनमाजी कब्र में आग भड़का दी जाएगी, बेनमाजी कब्र में एक गंजसा मुसल्लत कर दिया जाएगा। जो जानबूझकर एक नमाज भी छोड़ता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। नमाज में सुस्ती करने वाले को कब्र इस तरह दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर दूसरे तरफ बेवस्त हो जाएंगी। क्या भूलकर खाने पीने से रोजा टूट जाता है? जी नहीं, भूलकर खाने पीने से रोजा नहीं टूटता। रोजा कब फर्ज हुआ? रोजा 10 शाबानुल मुअज़्ज़म जो हिजरी को फर्ज हुआ। क्या रोजा रखने से आदमी बीमार हो जाता है? जी नहीं, बल्कि हदीस पाक में है कि रोजा रखो सेहत याब हो जाओगे। रोजा रखने की कोई फजीलत बयान करें। हदीस पाक में है कि जो शख्स माह रमजान का एक रोजा भी खामोशी और सुकून के साथ रखे उसके लिए जन्नत में एक घर सब्ज जबरदस्त का बनाया जाएगा। 4 मशहूर फरिश्ते कौन से हैं और ये क्या काम करते हैं? 4 मशहूर फरिश्ते ये हैं, अव्वल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, तीसरे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, चौथे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। और ये काम करते हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला की वही अंबिया अलैहिस्सलाम तक पहुंचाना, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम के जिम्मे रिज़्क़ पहुंचाना, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के जिम्मे क़ियामत के दिन सूर भूकना है, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे रूह कब्ज़ करना है। इंसान के साथ हर वक्त 2 फरिश्ते होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन का क्या काम है? लोगों की अच्छाइयों और बुराइयों को लिखना है। जी भाई, बेशक। जी भाई गुलाम जिलानी भाई, आपने मेरे सवालों के जवाबात बेहुस्ने खूबी दिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आपके इल्म अमल में ज़्यादती अता फरमाए। यार भाई, आपने मुझसे बहुत अच्छे सवालात किए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से दुआ है कि आपके इल्म अमल में ज़ियादती अता फरमाए। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। इस्लाम जिंदाबाद। बरकात इस्लाम मदरसा मक़सूदिया जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।